Hello everyone, this is Professor Jagdish Pimple from NIT Nagpur. I request you to kindly like, share and subscribe my YouTube channel and hit the bell icon so that you will get the live update notification about the channel. Thank you. Okay, so very good morning to all. In the yesterday videos, we have learned about the heap sort. We have seen what do you mean by heap sort, how heap sort will work to sort out the data element using the heap sort, either in ascending or descending order. We can also see what do you mean by max heap tree, mini tree, how we are going to construct the binary heap tree, and so on. Prior to that, we have already gone through the shell sort, insertion sort, bubble sort, selection sort. These are the different internal sorting techniques we have already learned. Today, we will see about the merge sort. So basically, what it means a merge sort. We have already learned not many sorting techniques. Just like the other sorting techniques, merge sort it is also one of the sorting techniques which comes under the internal sorting categories. Which comes under the internal sorting category. So basically, what it means a merge sort, the name itself represent merge. The name itself represent merge. So merging is nothing but we are going to combine two things. That is the merge. In examination, there are two different types of questions will be asked. You can perform the merge sort on the single array. That means एक सिंगल अरे दिया हुआ है डेटा आपको सेट ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं अरे में कुछ एंड यू विल आस्क to perform the merge sort to sort a given set of data element either in ascending or descending order. हो सकता है कि आपको एक सिंगल अरे दिया जाए और बोला जाए आपको कि आपको उसके ऊपर मर्ज सॉर्ट परफॉर्म करना है. The second way for asking the question, you will get a two arrays. आपको दो अरे मिलेंगे. For example, suppose if you have a array A and if you have a array B. एक आपके पास अरे A है, एक आपके पास अरे B है. And you will ask to perform the merge sort on these two different array. ये दो जो अरे दिए हुए हैं उस अरे पे आपको merge sort perform करना है. The question will be like this. Somewhere you will get a single array, in somewhere else you will get a two array. So we will see both the things, how we are going to sort a given set of array element with a single array and how we are going to sort the two different arrays using the merge sort. First of all, we will see about how the two different arrays will be sorted using the merge sort technique. Suppose you consider if we have a array A and array B. Suppose एक हमारे पास array A है and एक array B है. Suppose we have a array A and array B. If we have a array A and we have a array B. We have a two arrays, array A and array B. Before applying the merge sort on array A and array B, the prerequisite condition is, or we can say pre-requirement is, both the array A and array B would be in a sorted manner. जो भी आपके पास दोनों array दिए गए हैं, that array should be in a sorted manner. First of all, you need to sort the array A and sort the array B using any sort of using any kind of sorting techniques like bubble sort, selection, insertion. कोई भी sorting techniques you have to apply on array A and array B. First of all, sort the array A independently, sort the array B independently, and then after you have to apply the merge sort technique. That is a very prerequisite condition. Like in binary search, when you apply the binary search, before applying the binary search, your array should be in a sorted manner. Until and unless अगर जब तक आपका array sorted में नहीं होगा, you cannot apply binary search on the unsorted data elements. Now talking about the merge sort on two different arrays, so wherever you are going to apply the merge sort technique on two different arrays, that both the arrays should be in a sorted manner. It can't be happen.
Suppose A is sorted in descending order and B is sorted in ascending order. No, not like that. अगर A अगर ascending में है तो B भी ascending order में ही होना चाहिए. A अगर डिसेंडिंग में है तो B भी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट आउट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि A आपने अरे A को असेंडिंग में कर दिया और अरे B को डिसेंडिंग में कर दिया तो यू विल गेट अ रॉन्ग आंसर. So, very first requisite condition for merge sort on two different array is both the array should be in a sorted manner. You have to sort the two array with the help of any sorting technique like bubble selection, merge, mix, or any other. Got the point? The second thing is that now when you are going to combine the two arrays, when you are going to merging the two arrays, जब हम दो array को merge करेंगे, so we require the third array. Suppose we have a A array, array A is having some sort of element. Suppose मान के चलते हैं कि array A के पास 5 elements है, array A के पास 5 elements, sorry array A के पास मान के चलते कि array A के पास 10 elements है, and suppose array B is having the 5 elements, array B के पास हमारे पास 5 elements है. So when you combine array A and array B, when you merge array A and array B, it means that you require the third array, जिसमें आपके रिजल्टेंट सारे एलिमेंट्स आएंगे, array A plus array B के एलिमेंट्स कंबाइन हो जाएंगे. That means you require the array C. That means you require the array C. आपको array C की जरूरत पड़ेगी. Then what is the size of array C? फिर आप बोलोगे कि सर which size for array C we will take. So size of the array for the new array, that is C, is nothing but the size of array A plus size of array B. That means suppose the size of array is 10, array A में 10 elements है, array B में 5 elements है, 10 plus 5 15. So जो आपका नया रिजल्टेंट array जो आने वाला है उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे या फिर C का साइज कितना होगा, C का साइज कितना होगा, 15 होगा. Got the point? Suppose if you don't know the size of array and array B, आपको A का भी साइज नहीं पता, B का भी साइज नहीं पता, लेकिन आपको C तो बनाना है, तो C का साइज कितना रहेगा? You have to divide or you have to consider the equal amount of size or equal amount of data in array A as well as in array B. So it means that suppose one of the array is having the size n1 and one of the array is size having n2. Suppose A का array n1 साइज का है, array B n2 साइज का है, तो C array कितना बनेगा, C का साइज कितना रहेगा, n1 plus n2. Got the point? ठीक है, that n1 can be anything, n2 can be anything. So array, so that the size for the array C is size of array plus size of array B. Got the point? Now, how we are going to apply the merge sort on two different arrays? First of all, we'll see what is the if anybody asks to you, what is the complexity for merge sort? The complexity for merge sort is bigger and longer. Because in a single array, when you apply the merge sort, you have to decompose the array. You are going to decompose the array. It means that always, whenever whenever we are going to apply the decomposition technique or because divide technique, divide and conquer technique, at that time your complexity always longer or because bigger and longer. Now we will see how we are going to sort the data element using the merge sort. How we are going to apply the merge sort on two different arrays. Now here you can see. Here you can see. Here is the array A. Consider it. Here is the array A, and this one is the array B. Sub array A, sub array 1, sub array 2, or you can give the name array A and array B, whatever. And this one is the third array. This one is the third array. Okay. Now consider it. Now अभी C में कुछ गया है क्या, नहीं गया. C is totally empty. C क्या है, totally empty है. ठीक है, C में अभी कुछ गया नहीं है. ठीक है, that means consider that C जो array है. Now what is the size of array A? Array का size, array A का size कितना है? How many elements are there? Array A में कितने elements है? 1, 2, 3 and 4. So size of the array A is 4.
And what is the size of array B? How many elements? 1 and 2. So size of the array B is 2. Array A का size 4 है, array B का size 2 है. So what is the size of array C? Array C का कितना size हो जाएगा? 4 plus 2 6. That means array C में कितने elements आने वाले? 6 element आने वाले. Now consider how we are going to sort the elements. Elements कैसे sort होंगे? So whenever we are going to apply the merge sort on two different array A and array B के ऊपर जब आप merge sort apply करोगे, so you already know, you already aware about that. The when you apply the merge sort on two different array, before applying the merge sort, both the array should be in a sorted manner. चेक कर लीजिएगा अरे ए सॉर्टेड में है क्या, अरे बी सॉर्टेड में है क्या, अरे ए सॉर्टेड में है क्या. देखिए अरे ए में कौन से एलिमेंट है, अरे ए में यहाँ पे 1 है, 5 है, 10 है, 12 है. यस ऑब्वियसली इट इज इन सॉर्टेड ऑर्डर में है. अरे बी में देखिए पहले 6 है बाद में 9 है, अरे बी भी सॉर्टेड ऑर्डर, दोनों अरे सॉर्टेड ऑर्डर में है. दैट मींस वी कैन अप्लाई द मर्ज सॉर्ट. दैट मींस आवर कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल. हमारा पहला कंडीशन फुलफिल हो चुका है कि दोनों अरे सॉर्टेड में होना चाहिए, तो दोनों अरे सॉर्टेड में. नाउ we are going to apply the merge sort. So what merge sort will be work? Okay. So merge sort कैसे work करता है? So compare first element of array A. आपके array A का पहला एलिमेंट array B के पहले एलिमेंट के साथ कंपेयर होगा. Compare array A, first element of array A with the first element of array B. So array A में पहला एलिमेंट 1 है और अरे बी में पहला एलिमेंट 6 है. अरे ए में 1 है तो अरे बी में 6 है. तो 1 और 6 में से छोटा कौन सा है? 1 और 6 में से छोटा कौन सा है? 1 है. तो अभी फिर आप ये अरे 1 का जो 1 एलिमेंट है ये किसमें डाल दो? आप सी में डाल दो. तो यहाँ पे डाल दो. देखिए यहाँ पे डाल दिया आपने. यानी सी में क्या चले गया? 1 चले गया. दैट इज कंपेयर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे ए विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे बी. कंपेयर इट. whoever is the lowest element, जो भी छोटा एलिमेंट होगा, you have to transfer that element into the array C. Got the point? Clear it? Okay. Now the next thing is, so now in the second step, first step में क्या हुआ? पहला एलिमेंट अरे बी के फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर हुआ, जो भी छोटा एलिमेंट था वो हमने सी में ट्रांसफर कर दिया. दैट मींस अरे ए का 1 हमने सी में डाल दिया तो सी में 1 चलेगा. नाउ अभी फिर अरे ए का पहला एलिमेंट चला गया तो फिर अरे ए का जो पॉइंटर है दैट मींस पहले i इज इक्वल टू 0 था, अभी i इज इक्वल टू 1 पे चले गया. दैट मींस आपका 1 उधर चले गया तो i एक से शिफ्ट हो गया. दैट मींस अरे ए का फिर सेकंड वाला वैल्यू, अरे ए का फिर सेकंड वाला वैल्यू दैट इज 5 कंपेयर विद अरे बी का पहला एलिमेंट. बी का अभी कुछ गया है क्या एलिमेंट? बी का एलिमेंट कुछ गया ही नहीं है सी में. वी हैवंट ट्रांसफर एनी एलिमेंट फ्रॉम बी टू सी. ठीक है. सो बी का जो पॉइंटर है एज इट इज है. बी अभी बी यानी सपोज जे इज पॉइंटिंग टू अरे बी, तो जे अभी भी 0 पे है. सो कंपेयर नाउ 5 विद 6. 5 और 6 को कंपेयर करिएगा. ठीक है. तो 5 और 6 में से क्या छोटा है? 5 छोटा है. तो 5 आप सी में डाल दो. तो देखिए यहाँ से 5 सी में चले गया, यहाँ पे 5 सी में चला गया, यानी अरे ए के 2 एलिमेंट सी में चले गए. ठीक है. नाउ इन द थर्ड स्टेप फिर अरे ए का आई फिर से एक बार आगे बढ़ गया. दैट मींस अभी आई किसको पॉइंट कर रहा है? 10 को. यानी अभी हम अरे ए के थर्ड पोजीशन पे व्हिच इज हैविंग द डेटा एलिमेंट 10. नाउ अगेन कंपेयर विद द अरे बी. सो अरे बी के कौन से एलिमेंट के साथ कंपेयर होगा ये? अरे बी के कौन से एलिमेंट के साथ कंपेयर होगा ये? 6 के साथ. नाउ कंपेयर विद 6. सो 6 के साथ जब कंपेयर होगा तो 10 विद 6 कंपेयर करिएगा तो व्हिच इज द लेस एलिमेंट? सो 6 इज द लेस एलिमेंट. व्हाट इज द 6 इज अ लेस एलिमेंट. नाउ यू कैन सी हियर इज द मिस्टेक. 10 विद 6 यू हैव टू कंपेयर 10 विद 6. ठीक है. तो आपका यहाँ पे क्या चले जाएगा? 6 चले जाएगा. यहाँ 6 जाएगा. यहाँ पे क्या चले जाएगा? 6 चले जाएगा. ठीक है. नाउ देन नेक्स्ट इन हियर नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि अरे ए में हम 10 पे ही है, लेकिन अरे बी में हम लोग 9 पे चले गए. अरे बी में हम लोग कहाँ पे चले गए? 9 पे चले गए. ठीक है. नाउ कंपेयर 10 विथ 9.
10 with 9, 10 को हम लोग 9 के साथ कंपेयर करेंगे, तो विच एलिमेंट इज लेस 10 या 9? सो 9। सो हमें 9 को कहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा? वी हैव टू शिफ्ट 9 इनटू C। तो यहाँ पे 12 नहीं, यहाँ पे 9 चाहिए। देयर इज एन प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है, यहाँ पे क्या चाहिए? 9 चाहिए। ओके, राइट। सो अभी अरे बी के सारे एलिमेंट सी में चले गए, यानी हमारा 6 भी चले गया और 9 भी चले गया। ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपेंड? सी हियर, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपेंड? ठीक है, कि अरे ए में अभी रिमेनिंग एलिमेंट्स तो कितने हैं? एक 10 बचा हुआ है और एक 12 बचा हुआ है, और अरे बी के दोनों एलिमेंट सी में चले गए, यानी 6 भी चले गया है और 9 भी चले गया। अरे बी पूरा खाली हो चुका है। ठीक है, सो दैट मींस जब ऐसी कंडीशन अकर होती है, यानी एक दोनों में से कोई भी एक अरे एम्प्टी हो जाता है, पूरे एलिमेंट उसके सी में चले गए, ठीक है, रिजल्टेंट अरे में चले गए, शिफ्ट कर दिए, दैट मींस वन ऑफ द एलिमेंट इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ एलिमेंट। हो सकता है कि दोनों में से कोई भी एक अरे में एलिमेंट्स बच जाए, तो इस समय पे फिर हमें क्या करना है? जो बचे हुए सारे के सारे एलिमेंट हमें कहाँ कहाँ पुट करना है? सी में पुट करना है। दैट मींस यहाँ पे फिर आप पहले क्या पुट करोगे? 10 पुट करोगे। यहाँ 6 की जगह 10 चाहिए और यहाँ 9 की जगह हमें क्या चाहिए? 12 चाहिए। हाँ, 9 की जगह क्या चाहिए? 12 चाहिए। यानी ये पूरे दोनों के दोनों एलिमेंट्स हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिए? हमने कहाँ ट्रांसफर किए हैं? हमने सी में ट्रांसफर किए हैं। सो लाइकवाइज वी हैव टू सॉर्ट द एलिमेंट। ठीक है, दैट मींस क्या प्रोसेस हमने फॉलो किया? कंपेयर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे ए विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे बी। दोनों में से जो भी छोटा होगा उसको सी में डालते चलेंगे। ठीक है, जो सी में डाल दिया तो फिर वो अरे जो भी रिस्पेक्टिव अरे का जो एलिमेंट हमने सी में डाला है, वो एलिमेंट को हमें क्या करना है? हमारे सॉर्टिंग में से रिमूव करना है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस, लेट्स और वी कैन से we have to follow this type of steps to sort the given set of elements. Okay, so we have to follow the steps to sort the given set of elements using the merge sort technique. Hope so everybody got it. Okay, now we'll see the function for merge sort. A very simple function for merge sort. Okay, always the function start with a function return type. So suppose here I'm not returning any value, so I have put it void. After that, merge is the name of the function. After that, we have a parameter, that is integer left, integer right, integer result, integer n1, nl, okay, and integer nr. So basically what it means. So we have taken the pointers. Okay. No need to take the pointers also. We can directly write a program without pointers also. Depends on you how we are writing the program. Okay. So how this parameter will be got? Integer left, integer right, okay, integer result, integer n1, and integer nl and nr. So nl and nr means what? Nl is the size of left array. Just a second. Okay. Here confused nahi hona hai. Listen very carefully. Just I have changed the name of the array. Okay. Left means जैसे हमने a बोला है, तो here left means a. ये कौन सा array है? आपका a array है. You can take the integer a, or simply integer array a, integer array b, and integer array c. Okay. N1 is the size of the array a, and N2 is the size of the array b. You can take the name of the variable as per your choice. What I have taken in this particular function, one is the left array, another is the right array. Result is nothing but a resultant array. I have changed the name. Okay. You can take a, b, c. ठीक है, ए एक आपका अरे, बी एक दूसरा अरे, और रिजल्ट यानी सी, आपने से थर्ड सी अरे क्रिएट किया हुआ. आफ्टर दैट एनएल एंड एनआर, एनएल एंड एनआर these are the size of the left array and size of the right array. So you can take n1 n2 ऐसा भी लिया तो चलेगा, डिपेंड्स ऑन यू. आप वेरिएबल के नाम कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है, आफ्टर दैट I is equal to 0, j is equal to 0, and k is equal to 0. I have taken these three variables because I pointing to left array, suppose j pointing to right array, and suppose k pointing to result array. In a very simple language, I pointing to array A, j pointing to array B, and k pointing to array C. Got it? ठीक है, इस तरीके से तीन वेरिएबल्स दिए हुए हैं. After that, while n1 greater than 0 and nr greater than 0, that means
जब तक n1 दैट मीन्स जब तक लेफ्ट अरे का दैट मीन्स अरे ए का साइज 0 से बड़ा है एंड अरे बी का साइज 0 से बड़ा है, तब तक आपका ये लूप चलते रहेगा, तब तक आपका ये सब चलते रहेगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कंफ्यूज हो रहा होगा तो कंसीडर n1 इज द साइज फॉर अरे ए एंड n2 इज द साइज ऑफ अरे बी। ठीक है, nl और nr की जगह आप n1 n2 ले सकते हैं, लेफ्ट राइट रिजल्ट की जगह आप a b c ले सकते हैं। ठीक है, नाउ इफ लेफ्ट ऑफ i, ठीक है, और a ऑफ i लेस देन इक्वल टू b ऑफ j, व्हाट आई से कि अगर हमारा a का, हम लोग क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, अरे ए का पहला एलिमेंट अरे बी के पहले एलिमेंट के साथ कंपेयर होगा, दैट मींस आई और आई जे के क्या है, 0 0, आई 0 है, जे 0 है, के 0 है, आई का वैल्यू 0 है, जे का 0 है, के का वैल्यू 0 है, दैट मींस लेफ्ट ऑफ आई, दैट मींस लेफ्ट ऑफ 0, राइट ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू राइट ऑफ 0, यानी लेफ्ट ऑफ 0 पोजीशन की पहली वैल्यू 0 पोजीशन की वैल्यू और कैसे ए ऑफ 0 पोजीशन की वैल्यू कंपेयर होगी बी ऑफ 0 पोजीशन की वैल्यू के साथ, दैट मींस ए के पहले पोजीशन में जो वैल्यू होगी बी के पहले पोजीशन के वैल्यू के साथ कंपेयर होगी, है ना। अगर सपोज ए के पहले पोजीशन की वैल्यू अगर स्मॉल है, दैट मींस इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो क्या करना है आपको, लेफ्ट आई की वैल्यू कहां पे डालना है, आपको के में डालना है। दैट मींस अगर ए की पहली वैल्यू आपने बी के पहले वैल्यू के साथ कंपेयर की, सपोज मान के चलते कि ए की वैल्यू छोटी है बी की वैल्यू बड़ी है, तो ए का वैल्यू हमें कहां डालना है, सी में डालना है। ठीक है, तो सिमिलरली आपने यहाँ पे देखिएगा क्या किया है, हमने लेफ्ट ऑफ आई की वैल्यू में कहा डाल दी है, रिजल्ट ऑफ के में डाल दिया, के इज आल्सो 0, दैट मींस आपका के दैट इज रिजल्टेंट अरे जो सी है आपका, या फिर इन दिस केस रिजल्टेंट अरे इज रिजल्ट, तो रिजल्ट के यानी 0, रिजल्ट के 0 पोजीशन पे आपका ए का वैल्यू शिफ्ट होता है। मान के चलते हैं कि आपका पहला कंडीशन फॉल्स है, तो कहां जाएगा, वो एल्स के पास जाएगा, एल्स के पास जाने के बाद आपने बोला है कि इफ द फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर देन द सेकंड वन, तो पहला वैल्यू आपने सी में डाल दिया। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसका मतलब आपका ए का वैल्यू बड़ा है बी का वैल्यू छोटा है, तो आपको अभी कौन सा वैल्यू ट्रांसफर करना पड़ेगा, बी का वैल्यू ट्रांसफर करना पड़ेगा। सो अभी एल्स पार्ट में जाएगा, एल्स पार्ट में जाने के बाद ये इतना पोर्शन एग्जीक्यूट करेगा, दैट मींस राइट ऑफ जे की वैल्यू कहां पे चले जाएगी, के पे चले जाएगी, एंड जे प्लस प्लस होगा, के प्लस प्लस होगा और एन आर माइनस माइनस होगा। ठीक है, नाउ स्विच एन एल माइनस माइनस का मतलब क्या है कि एन एल अगर 1 है, ठीक है, सपोज द एन एल इज हैविंग द पोजीशन 5 होगा, 5 की जगह फिर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 एलिमेंट है आपके उसमें। ठीक है, तो एक एक से वो कम होते चले जाएगा। ठीक है, एन एल माइनस वन एंड एन आर माइनस वन, तो दीज आर द कंडीशन। ठीक है, कि आपका पहला एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे ए विद कंपेयर विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे बी, वैसे कंपेयर करते 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 हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, कंपेयर करने में जो एलिमेंट छोटा है वो सी में डालते चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा होने के बाद फिर एक कंडीशन हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था कि सपोज दो अरे हैं, एक अरे में कम एलिमेंट है, एक अरे में ज्यादा एलिमेंट है। ठीक है, और दोनों में से एक एक अरे एम्प्टी हो गया कंपैरिजन में, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल देखा था कि उसमें एक अरे बी खाली हो गया, बट अरे ए में कुछ रिमेनिंग डेटा बचा हुआ था, तो फिर वो डेटा किसके साथ हम लोग सॉर्ट करेंगे, वो डेटा हम लोग किसके साथ कंपेयर करेंगे, तो वो डेटा को कंपेयर करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। जो भी अरे आपका एम्प्टी हो गया, दोनों में से एक अरे आपका एम्प्टी हो गया, दोनों में से एक अरे के एलिमेंट्स खत्म हो गए सॉर्टिंग कंपैरिजन से। ठीक है, एलिमेंट्स खत्म हो गए, तो जो अरे में एलिमेंट्स बचे हुए तो सारे एलिमेंट्स आपको उठाना है और डायरेक्टली सीधा प्रिंट कर देना एज इट इज। व्हाट द पॉइंट। ठीक है, दैट मींस सपोज अगर अरे ए में कुछ एलिमेंट बचे हुआ है, अरे बी खत्म हो गया, तो अरे ए के एलिमेंट उठा लो और सी में आपको लास्ट में अपेंड करना है। या फिर सपोज ए के एलिमेंट खत्म हो गए, बी के एलिमेंट कुछ बचे हुए हैं, तो बी के एलिमेंट को आपको उठाना है और आपको सी में क्या करना है, प्लेस करना है। तो उसके लिए ये नीचे वाले दो वाइल लूप लगाए हुए हैं, तो कि सपोज अगर आपका एनएल इज ग्रेटर देन 0, अगर आपका फर्स्ट दैट इज लेफ्ट नाम का जो अरे है उसका साइज अगर 0 से बड़ा है, तो बचे हुए जितने भी एलिमेंट्स बचे हुए हैं लेफ्ट ऑफ आई करके हम लोग के रिजल्ट में डालते जाएंगे, दैट मींस हम लोग सी अरे में डालते जाएंगे, सो देन आई प्लस प्लस ए प्लस प्लस एंड एनएल माइनस माइनस, तो ये आपका तीन एग्जीक्यूट होगा। वैसे ही वाइल एनआर इज ग्रेटर देन 0, अगर आपका जो राइट अरे है, ठीक है, जिसको हम लोग बी अरे बोल रहे हैं, इसमें कुछ एलिमेंट अगर बचे हुए तो सारे के सारे एलिमेंट्स हम लोग कहां पे डालेंगे, रिजल्टेंट अरे में डाल देंगे, दैट इज कॉल्ड एज सी अरे। ठीक है, तो लाइकवाइज वी हैव टू एग्जीक्यूट or we have to implement a function for merge sort. Hope everybody got this concept how we are going to implement a function for merge sort. Now the second case, many times what happens in the examinations, you are asked the question, suppose एक अरे आपको दिया हुआ है और आपको उसको
मर्ज सॉर्ट के थ्रू सॉर्ट आउट करना है. You have to apply the merge sort on single array. In the previous example, what we have learned, how we are going to apply the merge sort on two different array. दो array दिए हुए हैं, दोनों array पे merge sort कैसे apply करें, ठीक है. But now in this example, ठीक है, एक single array दिया हुआ है और single array दिया हुआ है, तो single array पे हम लोग merge sort कैसे apply करेंगे, ठीक है. तो हमें देख रहे हैं, तो how we are going to perform the merge sort operation on single array, ठीक है. तो जो भी सिंगल अरे दिया हुआ है, पहले आपको उसको डिकम्पोज करते चलना है. पहले आपको क्या करना है, उसको डिकम्पोज करते चलना है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, वन, here total elements are 1 2 3 4 5 6 7 8. First of all, you have to decompose this array in the form of tree, ठीक है. 8 एलिमेंट्स है, तो 4 इधर डाल दिए, 4 इधर डाल दिए, ठीक है. फिर ये 4 में से, फिर ये 4 में से 2 इधर कर दिए, 2 इधर कर दिए, फिर ये 4 में से 2 इधर कर दिए, 2 इधर कर दिए, दो दो की पेयर बनाए. फिर ये दो का पेयर उसमें से एक डिवाइड कर दिया, एक डिवाइड कर दिया, फिर यहाँ एक डिवाइड कर दिया, फिर यहाँ एक डिवाइड कर दिया, फिर इसको एक इधर कर दिया, इसको एक इधर कर दिया, फिर यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया. दैट मीन्स कहाँ तक डिकम्पोज किया, जब तक इंडिविजुअल एलिमेंट नहीं आते तब तक डिकम्पोज किया. दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाटएवर array is given to you, you have to decompose that array into the several parts in the form of tree, है ना. ठीक है, सपोज यहाँ पे 8 है तो 4 4 आ गए. somewhere is suppose if you will get the odd numbers, suppose 11 elements है, तो how you are going to divide, ठीक है. तो पहले 6 बाद में 5, 6 5, फिर 6 के 3 3, 5 के क्या करोगे 3 2, ऐसा इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको डिकम्पोज करना है. डिकम्पोज करना है, क्या करना है, कहाँ तक डिकम्पोज करना है, जब तक आपको सिंगल सिंगल एलिमेंट्स नहीं मिलते, ठीक है. जस्ट कंफ्यूज नहीं होना है, आपको डायरेक्टली क्या करना है, ये इतना पार्ट आपने नहीं किया तो भी चलेगा, ये पार्ट जो है आपने इतने इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया तो भी चलेगा. जस्ट जो भी आपको एलिमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना. ये आपको एलिमेंट दिए हुए हैं 5 2 4 7 1 3 2 एंड 6. तो अभी क्या करना है, आपको दो दो की पेयर्स बनाना है, ठीक है. यानी देखिए ये दो की पेयर बन गई, ठीक है. आपको क्या करना है, दो दो की पेयर बनाना है. ये दो की एक आपकी पेयर है, फिर ये दो दो की आपकी पेयर है, फिर ये दो की आपकी पेयर है, फिर ये दो की आपकी पेयर है. दो दो की पेयर बना लिया आपने. फिर ये दो दो की पेयर्स बनी, इसमें आप इंटरनल सॉर्ट कर लो, ठीक है. 5 और 2 है, तो 5 और 2 से आप अगर इसको सॉर्ट करना है तो पहले क्या आएगा, पहले 2 आएगा बाद में 5 आएगा, तो पहले 2 आएगा बाद में 5 आएगा, ये सॉर्ट हो गया. फिर देखिए 4 और 7 को आपने कंबाइन किया, 4 और 7 एज इट इज रहेगा, 4 पहले है बाद में 7 है, तो इसमें नो चेंज है, फिर 4 और 7 आएगा. फिर देखिए यहाँ पे 1 और 3 है, 1 और 3 में से एज इट इज आएगा, पहले 1 आएगा बाद में 3 आएगा, तो यहाँ पे 1 और 3 आ जाएगा, ठीक है. उसके बाद 2 और 6, 2 और 6 में क्या है कि पहले 2 है बाद में 6 है, एज इट इज नो चेंज, तो यहाँ 2 और 6. पहले क्या किया हमने, इंडिविजुअल एलिमेंट है, ठीक है. सो दो दो की पेयर बनाए, दो दो की पेयर बनाने के बाद जो दो की पेयर बनी है उसमें सॉर्टिंग कर लो. जैसे अभी पहले केस में आया 5 और 2, 5 और 2 की पेयर बनी थी, लेकिन 5 और 2 को लिखते समय क्या लिखेंगे, पहले 2 बाद में 5, ठीक है. जैसे 4 और 7, ऑलरेडी 4 छोटा है और 7 बड़ा है, तो 4 और 7 एज इट इज लिखते हैं, ठीक है. फिर हमने ये जो दो दो की पेयर बनाए थे, फिर उसको भी हमें क्या करना है, मर्ज करना है. अभी ये इसको और इसको मर्ज करेंगे, ये दोनों पेयर को मर्ज करेंगे, ठीक है, और ये दोनों पेयर को मर्ज करेंगे, ठीक है. यानी 2 5 4 7 को मर्ज करेंगे और इधर 1 3 2 6 को मर्ज करेंगे. 2 5 4 7 को जब मर्ज करेंगे तो हाउ वी आर गोइंग टू राइट, 2 5 4 7 को कैसे लिखेंगे, 2 4 5 7 इस तरीके से. यानी इसको अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है तो क्या आएगा, पहले 2 आएगा तो मैंने 2 लिख दिया, बाद में 4 आएगा तो 4 लिख दिया, बाद में 5 आएगा बाद में 7 आएगा, समझ गया. वैसे इधर 1 3 2 6 को कैसे लिखेंगे, पहले 1 लिखेंगे, बाद में 2 लिखेंगे, बाद में 3 लिखेंगे और बाद में 6 लिखेंगे, ठीक है. नाउ फाइनली फिर अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों को कंबाइन करेंगे, ये दोनों को कंबाइन करेंगे, ये दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक है. तो कंबाइन करने के बाद हमें कंबाइन में क्या क्या मिलेगा, 2 4 5 7 1 2 3 6 ऐसे मिलेगा. फिर इसको एक्चुअली आप लिखोगे कैसे, पहले क्या आएगा 1 आएगा, बाद में 2 आएगा, बाद में 3 आएगा, बाद में 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा एंड 7 आएगा. सिंपली कुछ नहीं करना है, जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं हर एक पहले आपको दो दो की पेयर बनाना. दो दो की पेयर बनाने के बाद उसको आप सॉर्ट कर लो, फिर जो दो दो की पेयर बनी थी उसको दो की पेयर को कंबाइन करते जाओ, ठीक है. सो ऐसे करते 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 आखिरी में आपको सिंगल अरे मिलेगा जो आपका सॉर्टेड ऑर्डर में रहेगा. सो इस तरीके से हम लोग मर्ज सॉर्ट परफॉर्म करते हैं ऑन द सिंगल अरे. So hope everybody understood how we are going to sort
the data element using merge sort. How we can perform the merge sort on single array, how we can perform merge sort on two array, and how we are going to implement the function for sorting the two different array using the merge sort technique. Hope everybody got everything. Okay. So thank you one and all. Thank you.